Namaskar. In this series of geomorphology, only some topics remains left to be discussed, and we completed all the topics related to the GS parts of the geomorphology, geography. In this sequence, in this series, today we will discuss volcanoes and volcanicity. Today we will discuss volcano, volcanoes, ज्वालामुखी, and volcanism and volcanism, यानी कि ज्वालामुखी। हम जो है इससे पहले अर्थक्वेक वगैरह के टॉपिक्स, उससे पहले प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, उससे पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह अलग अलग वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उसी के सीक्वेंस में आज का हमारा टॉपिक जो है वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिज्म है। व्हाट इज द वॉल्केनोज? volcanoes volcanoes what is the volcano is a vent or wave opening through which lava dust, smoke, gases are ejected। volcanoes क्या है? it is an opening it is an vent it is a vent it is a mouth through which ejection of gases, dust, ash, gases, dust, ash, and rock materials through which ejections of gases, dust, ash, and rock materials take place। volcanoes क्या है? it is an opening, it is a mouth, it is a vent through which ejections of gases, dust, and rock materials etc. टेक प्लेस। वॉल्केनोज जो है एक ओपनिंग का नाम है, एक माउथ है जिससे लावा, गैसेस, रॉक सब्सटेंसेस वगैरह ज़मीन के भीतर किसी पाइप से ज़मीन के ऊपर आकर के जमा हो जाते हैं। इसी को हम वॉल्केनोज कहते हैं। क्या वॉल्केनो कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं। इट इज ए लैंड फॉर्म फीचर। यह जो है पृथ्वी पर एक यूनिक किस्म का, एक जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर का, फीचर्स का लैंडफॉर्म है। इट इज़ ए लैंडफॉर्म फीचर्स ओवर द सरफेस, ओवर द अर्थ सरफेस। तो वॉल्केनोस क्या है? इट इज़ एन ओपनिंग, इट इज़ ए वेंट थ्रू विच gases, dust and ashes, rock material, rock substances are ejected। यह एक पाइप है, यह एक इस तरह से हम कह सकते हैं इसको
कि यह एक जो है पाइप है जिससे कि इजेक्शन से लावा का होता है, और इसी को हम कहते हैं वॉल्केनोज। इट इज़ ए वेंट। ये माउथ जो है जिससे लावा निकलता है, इसको वेंट कहते हैं। ये जिससे लावा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करके आ रहा होता है, इसी को पाइप कहते हैं। जहाँ पे लावा इस वेंट के और इस पाइप के चारों तरफ डिपॉजिट हो रहा है, ये वाला हिस्सा, और एक कॉनिकल शेप बना रहा है, इसी को वॉल्केनिक कोन कहते हैं। ये वाला हिस्सा दोनों साइड में जो लावा आकर के डिपॉजिट हो गया, इसी को वॉल्केनिक कोन कहते हैं। अभी हम बात करेंगे डिटेल में इसको किस किस तरह के कोन होते हैं। When lava coming from inside the earth and ejected from the vent from the mouth and deposited around these pipes and form a conical shape known as the volcano। क्लियर हो गया। अगला हमारा टॉपिक है वोल्केनिज्म। ये क्या है? हमारा एक लैंड फॉर्म फीचर्स है, एक रूप है जो अर्थ पे दिखता है जब वॉल्केनिक लावा ऊपर निकल करके जमा होता है, तो वो वाली फीचर्स क्या कहलाती है? वॉल्केनो कहलाती है। यह ज्वालामुखी एक फीचर है ये। दूसरा हमारा टॉपिक है वॉल्केनिज्म। व्हाट इज द वॉल्केनिज्म? अब हम बातें करते हैं वॉल्केनिज्म की। वॉल्केनिज्म थोड़ा इससे डिफरेंट है। वॉल्केनिज्म, इट इज ए प्रोसेस। वॉल्केनिज्म क्या है? इट इज ए प्रोसेस which includes all mechanism of magma formation। it is a process। volcanism क्या है? it is a process which includes magma formation, magma transportation, movements of the magma, and magma formations, their eruptions, magma formations, their eruptions, and depositions over the surface, their eruptions, depositions on surface, surface मतलब जहाँ हम रहते बसते हैं, and form different appearances over the and forms different appearances and forms different appearances on surface वल्केनिज्म क्या है साहब? इट इज ए प्रोसेस which includes magma formations, their transportations, their movements inside the earth, their movements in the mantle parts, their eruptions through the pipes, and deposition around the vent around these pipes, and forms different features over the surface. The whole process is known as the volcanism. In this way we can say volcanism means it has two components. One component that discuss regarding the interior conditions of the magma, another eruptions, that is the process. Next one is the depositions. The whole processes that involves in the formations of any volcanic features is called volcanism. Volcanoes, it is land form। ये एक लैंड फॉर्म बन गया, इसी को वॉल्केनो कहते हैं।
जबकि वॉल्केनोज लैंड फॉर्म, वॉल्केनिज्म लैंड फॉर्म नहीं है। वॉल्केनिज्म एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है जमीन के भीतर मैग्मा के बनने से, मैग्मा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने से, मैग्मा का अपराइट या अपलिफ्टमेंट होने से, अपराइज होने से, मैग्मा जो है किसी पाइप या वेंट से निकल करके उसके चारों तरफ अलग फीचर्स बनाने से, इस सब को मिला करके वॉल्केनिज्म कहा जाता है। तो वॉल्केनिज्म का मतलब हुआ कि इट टॉक्स अबाउट द volcanism is a broader mechanism which related to both the components, the internal features as well as the external components, endogenetic and exogenetic. It talks with the both types of the features. इसको अगर हम मिटा देते हैं ये क्लियर हो जाएगा कुछ। वॉल्केनिज्म क्या है? इट टॉक्स अबाउट both the environment, both the components। वन कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं आपका जो है endogenetic component, another one is the exogenetic elements या components। इंडोजेनेटिक में काम हमारा क्या है, यानी ज़मीन के अंदर जो है क्या होता है, उस वाली कंडीशंस में क्या है कि मैग्मा फॉर्मेशंस, मैग्मा डिस्प्लेसमेंट, मैग्मा अपलिफ्टमेंट थ्रो ए conduit, थ्रो ए conduit या थ्रो ए पाइप। conduit का मतलब पाइप। एक्सोजेनेटिक में क्या है? upwelling magma is deposited over the surface and forms different features। एक्सोजेनेटिक में क्या है? अपवेलिंग ऑफ द मैग्मा, मैग्मा ऊपर आकर के जमा हो जाए और अलग अलग फीचर्स बनाए, उसको एक्सोजेनेटिक यानी बाहरी जो है कंडीशन जो बनती है वॉल्केनिक इरप्शन से। अब अगला हमारा टॉपिक्स है वॉल्केनिक मटेरियल से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वॉल्केनिक मटेरियल्स हैं। वॉल्केनिक मटेरियल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बातें करें, वॉल्केनिक मटेरियल्स गैसेस, वेपर्स, सॉलिड एंड लिक्विड, all types of the substances are ejected through these volcanic eruptions। हमने क्या कहा? नंबर एक पे हमने कहा गैसेस एंड वेपर्स। नेक्स्ट नंबर पे हमने कहा लिक्विड। नेक्स्ट नंबर पे हमने कहा सॉलिड। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स या substances in different shape, in different forms is ejected, all types of materials are ejected through these vent, through these pipe, through these mouth of the volcano। अगर ये लिक्विड फॉर्म में जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो उसी को लावा कहते हैं एंड मैग्मा। जब लावा इरप्शंस हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा तो उसी को हम लावा या मैग्मा कहेंगे। जब वही इरप्शंस सॉलिड के फॉर्म में हो तो उसको हम जो है पायरोक्लास्ट कहते हैं।
जब यही लावा सॉलिड या सॉलिड के फॉर्म में हो, सॉलिड का मतलब कि जैसे बम्ब, लेपिल्ली, ऐश, डस्ट, से बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं बट वो सॉलिड होते हैं. दीज आर द वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू द बियर आइज लाइक डस्ट पार्टिकल. डस्ट, द डायमीटर ऑफ एशेस आर बिगर देन द डस्ट. और डस्ट से बड़ा हमारा जो है ऐश होता है, ऐश से बड़ा जो है लेपिल्ली होता है, लेपिल्ली से बड़ा जो है बम्ब होता है. These are the solid particles, solid substances that ejected through the volcanoes. तो उसको पायरोक्लास्ट कहते हैं. अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं. अगर वो गैसियस या वेपर फॉर्म में है तो उसको जैसे हम गैस या स्टीम या वेपर कहते हैं. अब इनके बारे में हम डिटेल में बातें करते हैं. तो नंबर 1 पे हम मैग्मा और लावा की बात करते हैं. नंबर 1 पे हमारा जो है मैग्मा और लावा की बातें करें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वी विल डिस्कस द मैग्मा एंड लावा. मैग्मा एंड लावा. These magma या molten materials is also called the plumes. These molten substances is also called the plumes. When any molten substances coming from the earth went through these pipes called the magma or lava. When the molten materials remain inside, it is called the magma. When these molten materials, these liquid materials of the volcanic eruption deposited over the surface, it called lava. जब यही molten substance, ये liquid material जमीन के भीतर होते हैं तो उनको हम मैग्मा कहते हैं. जब यही molten material जमीन के ऊपर आके जमा हो जाते हैं तो उनको हम लावा कहते हैं. अब इसमें हम लिख सकते हैं molten rock material are called magma below the earth surface. यहाँ पे लिख सकते हैं molten rock material below the earth surface is called magma. The molten material over the surface is called lava. वही molten material जो आकर के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है उसी को हम लावा कहते हैं. जब वो अर्थ के भीतर होता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं. इन मैग्मा और लावा को हम डिवाइड कर सकते हैं सिलिका के आधार पे. इस मैग्मा या लावा कैन बी divided. These magma lava can be divided on the basis of silica presence, on the basis of silicates, ऐसे कह सकते हैं, on the basis of silicates या सिलिका. इन लावा और मैग्मा को हम सिलिका के आधार पे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक हिस्सा हमारा जो है एसिडिक होगा, एक पार्ट एसिडिक, दूसरा पार्ट हमारा जो है बेसिक लावा. तो इसको हम अगर मिटा करके फिर से लिखना शुरू करते हैं. यहाँ पे इन लावा को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक वाला हमारा जो है एसिडिक लावा हो गया, एसिडिक लावा. दूसरा वाला हमारा बेसिक लावा. एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा. ये जो एसिडिक लावा है, हाई सिलिका कंटेंट. एसिडिक लावा में क्या होता है? हाई सिलिका कंटेंट, हाई
सिलिका कंटेंट होता है इसमें एसिडिक लावा में। बेसिक लावा में हमारा जो है, यहाँ से हम अगर एक डिवाइडर बना देते हैं समझने के लिए, बेसिक लावा में हमारा जो है लो सिलिका कंटेंट। हाई सिलिका कंटेंट का मतलब कि सिलिका इसमें 60% या उससे ज़्यादा होता है। इसमें सिलिका जो है 60 से कम या जनरली 40 से भी कम होता है। तो इसमें क्या है, आयरन प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ सिलिका। इसमें सिलिका की जगह पे आयरन ज्यादा होता है। तो पुअर इन सिलिका, इसमें हम कह सकते हैं पुअर इन सिलिका। रिच इन आयरन, रिच इन आयरन, ये जो है रिच इन सिलिका। अगर ये सिलिका ज्यादा होगा तो उसके कारण ये जो है ज्यादा विस्कस होगा। तो हम कह सकते हैं कि मोर विस्कस। ये वाला हम कह सकते हैं लेस विस्कस। अगर इसमें सिलिका ज्यादा है तो ये ज्यादा विस्कस होगा। ज्यादा विस्कस का मतलब कि ज्यादा उसमें कठोरपना होगा, आसानी से वो फ्लो नहीं होगा। जैसे कि हनी, हनी क्या है, विस्कस है, और वाटर क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड है, आसानी से फ्लो हो जाता है। ये लेस विस्कस, इस तरह हम कह सकते हैं जब कोई चीज लेस विस्कस होगा तो मतलब कि हाई फ्लूइड होगा, हाई फ्लूइड होगा। हाई फ्लूइड का मतलब कि ये वाला अगर ज्यादा विस्कस है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लेस फ्लूइड होगा। जब लेस फ्लूइड होगा तो उसका मतलब कि लावा ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। इसका मतलब स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया। ये वाला जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया। ये जो है बहुत ही स्मॉल एरिया में फैलेगा। ये वाला हमारा जब हाई फ्लूइड होगा हम कह सकते हैं कि स्प्रेड ओवर लार्ज एक्सटेंसिव एरियाज। ये बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा। फॉर्मेशंस ऑफ वॉल्केनिक कोन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। जब दूर तक नहीं फैलेगा, जो पाइप है जहाँ से लावा निकला, जो माउथ है जहाँ से लावा निकला, उसके चारों तरफ ही डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या करेगा, पीक बनाएगा, कोन बनाएगा। इस वाली कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशंस ऑफ माउंटेन्स एंड कोन। ये वाला जब दूर तक फैल जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके कारण जो है फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन प्लेटू शील्ड एंड डोम बहुत ज्यादा हुआ तो डोमल शेप बनाएगा। डोमल शेप भी बहुत दूर तक फैला होगा क्योंकि उसकी कोनिकल नहीं होगा। इसमें हर हालत में कोनिकल होगा क्योंकि विस्कसिटी डिसाइड करेगी कौन कोनिकल होगा, कौन कैसे होगा। अगर हम इसका एक डायग्राम के थ्रू इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं स्पेस कम होने के कारण हमने एक ये सरफेस बनाया, अर्थ सरफेस, जिस पे हम रहते बसते हैं। इस पे हम रहते बसते हैं, ये सरफेस है। अगर वॉल्केनिक एरप्शंस यहाँ पे होगा इस वाली कंडीशंस में हमारा, ये जो है बेसिक लावा वाली कंडीशंस में, तो कैसे होगा। बेसिक लावा वाली कंडीशन, अरे विस्कोसिटी बहुत ही कम है तो लावा जो है जस्ट ऐसे इस तरह से कुछ बनेगा। अगर विस्कोसिटी कुछ ज़्यादा है तो लावा तो भी इस तरह से कुछ बनेगा। थोड़ा और ज़्यादा है तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर लावा हमारा जो है दोनों के बीच में है तो भी इस तरह से कुछ डोमल शेप बनेगा। अगर लावा थोड़ा सा और ज़्यादा है तो ये इस तरह से बनेगा हमारा।
दोनों कंडीशंस में हमने देखा यहाँ पे या तो ये फ्लैट है या प्लेन है या प्लेटू टाइप या कंडीशंस बन गई या डोमल शेप बन गई या शील्ड बन गई। ये वाला अगर हम इसको ऐसे समझते हैं कुछ, सपोज दैट कि हमारा लावा का ये पाइप है, इसी से लावा जो है निकल करके आया, यहाँ पे लावा ये इससे ऐसे डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे लावा इससे डिपॉजिट हुआ आकर के, यहाँ पे लावा जो है मान लेते हैं ये इस वाले से ऐसे कुछ डिपॉजिट हुआ, इस वाली कंडीशन में बीच वाली पाइप यहाँ से लावा आकर के ऐसे कुछ डिपॉजिट हुआ। यहाँ पे लावा जो बहुत ज़्यादा विस्कस था, बहुत ज़्यादा अगर लावा विस्कस होगा तो इसका मतलब कि पास ही में लेकिन ऊपर ऐसे जमा होता चला जाएगा कि और ज़्यादा विस्कस है। यहाँ पे हमने देखा कि फुल्ली कोनिकल या पिरामिडल पीक टाइप बन रहा है। ये डोमल बन गया, ये प्लेन है, प्लेटू है, शील्ड लाइक कंडीशंस बन रही है अगर लावा हमारा जो है विस्कस है। अगली कंडीशंस अगर हम इसी की बात करते हैं तो कुछ इसमें और पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा इसमें है कि यूजुअली एक्सप्लोसिव और इरप्शन थ्रो दी जो है वेंट या क्वाइट इरप्शंस जो है थ्रो दी फिशर। इस वाली कंडीशंस में क्या होता है कि यूजुअली explosive type eruptions through the vents मतलब माउथ जहां से लावा निकलता है, through the vent। usually explosive type eruption through the vent, यूजुअली इस वाली कंडीशन में क्या होगा हमारा फिशर टाइप इरप्शन होगा। लावा अगर फ्लूइड है तो क्या होगा, फिशर टाइप इरप्शन होगा। फिशर टाइप इरप्शन का मतलब कि क्वाइट टाइप इरप्शन होता है। क्वाइट का मतलब बहुत ही शांति और उससे निकलता है लावा, बहुत ज्यादा इसमें आवाज नहीं आती। ये वाला वायलेंट होता है। उसके अलावा जो है ये वाला बहुत ही विस्कस होता है। बसाल्ट एंड गैब्रो, इस वाली कंडीशंस में कौन सी रॉक बनती है, बसाल्ट एंड गैब्रो। इसमें जो है कौन सी रॉक बनेगी एग्जांपल के तौर पे, इसमें जो है हमारा बनेगी यहाँ पे बसाल्ट एंड गैब्रो, तो उसमें जो है ग्रेनाइट बनेगी, यहाँ पे ग्रेनाइट बनेगी अगर एसिडिक लावा है। बेसिक लावा है तो बसाल्ट और गैब्रो बनेगी। जब लावा आकर के सरफेस पे जमा हो जाती है और वो लावा बेसिक होती है तो उसी को बसाल्ट कहते हैं। अगर लावा किन्हीं कारणों से सरफेस पे नहीं आ पाई और ज़मीन के भीतर जमा हो गई लेकिन वो बेसिक लावा है तो उसी को क्या है, गैब्रो कहते हैं। तो दोनों एक तरह से बेसिक ही हैं, लेकिन ये वाली कंडीशंस में सरफेस पे जमा होती है बसाल्ट और गैब्रो जो होती है सरफेस के भीतर जमा होती है। इस तरह से जो है अगला हमारा टॉपिक है, इसी में जो है आगे चल करके नेक्स्ट हमारा जो है सॉलिड मटेरियल की हम बात करते हैं। हमने लावा की बातें कर ली। लावा का मतलब कि जो लिक्विड मटेरियल है। लिक्विड मटेरियल के बाद अगला हमारा टॉपिक जो है सॉलिड मटेरियल है। तो सॉलिड मटेरियल की अगर हम बातें करते हैं तो उस वाले कंटेक्स्ट में कुछ डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड मटेरियल को हमने क्या कहा था, पायरोक्लास्ट कहा। सॉलिड मटेरियल का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, पायरोक्लास्ट। जब किसी भी वेंट से किसी भी उससे लावा निकलती है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसी को हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो पायरोक्लास्ट का मतलब होता है सॉलिड मटेरियल ऑफ वोल्केनो। सॉलिड मटेरियल्स ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड पायरोक्लास्ट। ये जो पायरोक्लास्ट है इसमें सबसे बारीक जो कण होंगे सॉलिड मटेरियल्स में वो डस्ट होते हैं। तो अगर हम उसको सीक्वेंस वाइज लिखें यहाँ पे तो ज़्यादा समझ में आएगा।
मिटा देते हैं यहाँ पे। तो नंबर 1 पे हमारा सबसे सॉलिड मटेरियल्स में सबसे बारीक कण जो होगा वो क्या होगा, डस्ट होगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने डस्ट। डस्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा कण अगर डायमीटर तो उसको ऐश कहा जाता है। ऐश से अगर थोड़ा सा भी बड़ा होगा कण तो उसको लय पिल्ली कहते हैं। लय पिल्ली कहते हैं। अगर ऐश से बड़ा होता है कण तो उसको लय पिल्ली कहेंगे। लय पिल्ली से भी अगर बड़ा होता है तो उसको बम कहते हैं, उसको वॉल्केनिक बम कहते हैं। ये हो गया। ये डस्ट है, ये बहुत ही फाइन ग्रेन्स होते हैं। इसका डायमीटर इतना कम होता है कि ये बियर आंखों से विजिबल नहीं होता। ऐश जो है 2 मिलीमीटर के साइज का हो सकता है, अप्रोक्सीमेट 2 मिलीमीटर इन साइज। इसका डायमीटर जो है बहुत ज़्यादा होगा तो 2 मिलीमीटर होगा। ये जो है पी ग्रेन, जैसे पी होता है लेपिल्ली, उसका साइज जो है साइज ऑफ द पी हम कह सकते हैं यहाँ पे। इसका साइज जो है साइज ऑफ द पी के इक्वल होता है, यानी कि जो मटर के दाने होते हैं उसके इक्वल इसका साइज होता है। ये वाला जो हमारा बम्स है इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर या मोर होता है। इसका साइज जो होता है डायमीटर 6 सेंटीमीटर और मोर इन साइज। इसका साइज बम्स का 6 सेंटीमीटर या हम कह सकते हैं। और बास्केटबॉल, अगर बास्केटबॉल अगर हम देखते हैं तो वो कितने बड़े आकार का होता है, उस तरह से कुछ इसका बम्स का साइज होता है। ये सारे जो है सॉलिड मटेरियल्स हैं, सॉलिड जो है सब्सटेंसेज हैं जो इरप्शंस होते हैं। अगला हमारा जो है गैसेस एंड वाटर वेपर्स। अगला हमारा जो है इसमें इसके अंतर्गत गैसेस एंड वाटर वेपर्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो है गैसेस एंड वाटर वेपर्स। गैसेस एंड वाटर वेपर। गैसेस और वाटर वेपर्स की अगर हम बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सब्सटेंसेस जो रिलीज होते हैं स्टीम और वेपर्स, यानी कि स्टीम और वेपर अप्रोक्सीमेट तमाम गैसेस में सबसे ज़्यादा स्टीम और वेपर ही रिलीज होता है, जो अप्रोक्सीमेट 60% से 90% तक हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टीम एंड वेपर। स्टीम एंड वेपर जो है मिनिमम कम से कम मान लीजिए कि 60% होता है। सबसे ज़्यादा गैसेस में वगैरह में स्टीम निकलता है, तो जो 60% से 90% तक ये हो सकता है। उसके अलावा जो है हमारे दूसरे गैसेस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हम लिख देते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कुछ कंपाउंड भी होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, जैसे कुछ कंपाउंड भी इससे निकलते हैं, रिलीज होते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि सल्फ्यूरेटेड H2SO4 शायद है, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन H2SO4, हाइड्रोजन H2SO4, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अलावा जो है ये कंपाउंड हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह भी रिलीज होती है। उसके अलावा जो है क्लोराइड ऑफ आयरन एंड पोटेशियम्स वगैरह, क्लोराइड ऑफ आयरन एंड पोटेशियम। तो ये मेजर गैसेस हैं जो कि इससे रिलीज होती हैं। इसमें स्टीम और वेपर सबसे ज़्यादा गैसेस में रिलीज होने वाला सब्सटेंस है। उसके बाद ये सब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग अलग जगहों पे वेरी करता रहता है, कहीं पे नाइट्रोजन तो कहीं पे कार्बन, कहीं पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड, कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कहीं पे सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन यानी H2SO4, तो कहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कहीं पे जो है क्लोरीन ऑफ आयरन, क्लोरीन ऑफ पोटेशियम्स वगैरह रिलीज होते रहते हैं ये। अगला हमारा जो है ये मतलब कि जो कंपोनेंट्स ऑफ द
वॉल्केनोज है। हमने जैसे कि बात किया कंपोनेंट्स ऑफ द वॉल्केनोज, यानी वॉल्केनोज जो हमने बताया था अभी, उसकी अलग अलग जो है शेप होती है, उसकी जो है शेप ऑफ द वॉल्केनोज या डिफरेंट नेम ऑफ द वॉल्केनोज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनोज। कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनोज की अगर हम बातें करें, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है अर्थ सरफेस है, ये ग्राउंड है, ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है जहाँ पे हम रहते बसते हैं। इसकी हमने कई एक लाइनें बना दी। सपोज दैट कि लावा ये निकल करके आया, यहाँ से कहीं से लावा निकल करके आता है, ये वाला ही जो हिस्सा है यहाँ से लावा निकल करके आया, यही लावा जो है अलग अलग ऐसे इस तरह से कुछ डिपॉजिट होता चला गया। ये लावा कुछ इस तरह से इधर डिपॉजिट होता चला गया, ये लावा जो है कुछ इस तरह से यहाँ डिपॉजिट हुआ, इधर भी ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इधर भी डिपॉजिट हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम समझने के लिए कुछ इस तरह से इसका डायग्राम एक और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, इस वाली कंडीशंस में हमने देखा ये लावा जो है यहाँ से इरप्शंस होता है लावा का, और ये लावा आ करके ये अलग अलग ऐसे साइड में दिशाओं में ये पूरा का पूरा एक तरह से लावा का ये वाला जो है अभी नया लावा का, यानी कि एक तरह से मोल्टेन फॉर्म में है जो रेड कलर मैंने शो। ये जो है ओल्ड हो गया, जो कि पहले से ठंडा हो गया, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर ऐसे लावा का डिपॉजिट होता चला गया। इस वाली कंडीशंस में यहाँ पे हम देखते हैं जो ये माउथ है, ये वाला हिस्सा, इस माउथ का क्या नाम है? वेंट। इस माउथ को वेंट कहा जाता है। ये वाला हिस्सा जहां से लावा निकल रहा है, ये जो पाइप है पूरी आर पार, इस पाइप को हम कहते हैं वॉल्केनिक पाइप और कॉन्डुइट। ये जो लावा सराउंडिंग में इस पाइप के चारों तरफ जमा हो गया और एक कोनिकल आकार का कोन, यानी कीप जिस तरह कुप्पी होती है, इस तरह से एक शंकु मतलब कि बना दिया, एक शंकु बनाया, ये कोन बना देता है। इस कोन वाली कंडीशंस को, ये जो कोन बना दी गई, इसको हम वॉल्केनिक कोन कहते हैं। इस वाले हिस्से को, ये जो पूरा आर पार इधर जो है, इधर यहाँ ये इधर और इस साइड दोनों साइड में, इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक कोन। जहां से लावा निकल करके आया, ये हमारा जो है पेरेंट रॉक है या बेड रॉक है, जहां से लावा निकल करके आया, बेड रॉक कह सकते हैं या पेरेंट रॉक कह सकते हैं। तो ये लावा डिफरेंट लेयर में इस पे जमा हो गया और एक आकार पूरा बनाया, इसी को हम कोन कहते हैं। इस कोन के अलग अलग नाम होते हैं, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना ही समझना है कि जो माउथ होता है जहाँ से लावा इरप्शंस होता है, उसी को वेंट कहते हैं। इस रूट से जहाँ से लावा निकल करके ज़मीन के भीतर ऊपर तक पहुँचता है, जिस रास्ते से गुजरता है, ये वाला पूरा चैनल, ये वाला रास्ता जो है कॉन्डुइट या वॉल्केनिक पाइप कहलाता है। जो लावा ये डिपॉजिट हो गया, ये लेयर बाय लेयर, और एक कोनिकल शेप बनाया, इसी को वॉल्केनिक कोन कहते हैं। अगला हमारा जो है, इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, द माउथ थ्रू विच ejections of the lavas and gases taken place known as the vent. The pipe या channel through which lava coming from interior surface coming from the earth inside the earth and deposited around the surface around this pipe known as the conduit. The pipe through which lava coming from bedrocks and deposited around this pipe known as the conduit. The depositions of the lava and making a cone-like feature is known as the volcanic cone. The rock from which these lava
coming known as the bedrock या parent rocks. The source from which lava ejections taken place, this source is known as the bedrock या parent rock. अगला हमारा है causes. What are the causes and mechanisms of the volcanoes? नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है causes and mechanisms of the volcanoes. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करते हैं causes and mechanism of volcanoes. वॉल्केनोज के क्या क्या काजेज हैं, क्या क्या मेकानिज्म हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसके काजेज में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स या प्लेट मूवमेंट, हम सिस्टमेटिक ऐसे लिखते चलते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे. प्लेट मूवमेंट, प्लेट्स का एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव होना या अपनी जो है दिशा में अपने स्पेस अपने जो है एक सिस्टम को फॉलो करते हुए मूव करना. नेक्स्ट जो है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब कि जब लावा ऐसी जगह पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो जहाँ पे अर्थक्वेक आता हो या अर्थक्वेक कोई आया हुआ हो या आने की संभावना हो, तो वहाँ पे रॉक कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पे हो. इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. अगला हमारा जो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट हमारा जो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के भीतर अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ से भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकता है. वेपर एंड स्टीम फॉर्मेशंस. नेक्स्ट हमारा जो है वेपर एंड स्टीम फॉर्मेशंस. वेपर एंड स्टीम फॉर्मेशंस विल इंक्रीज वॉल्यूम्स. अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा किसी चीज़ का तो फोर्स एक तरह से हमारी जो है पे भी प्रभाव पड़ेगा और उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा किसी जगह को घेरने के लिए, जिसके कारण जो है नीचे से एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, वहाँ की राख कमज़ोर हो जाएगी और वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगेगा. तो वेपर एंड स्टीम फॉर्मेशंस विल इंक्रीज द वॉल्यूम. वेपर एंड स्टीम फॉर्मेशंस विल इंक्रीज द वॉल्यूम. अगर भाप या एक तरह से हम कहते हैं कि जलवाष्प वगैरह बने ज़मीन के भीतर, तो उसके कारण क्या है उस जगह का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नीचे से वो फोर्स एग्जर्ट करेगी, डालेगी ऊपर वाली लेयर पे, सरफेस पे, और वहाँ पे कमज़ोर होकर के फिर नीचे से लावा का इरप्शन होने लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट है आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस. आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस. नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस के बाद जो है डिक्रीजिंग सुपर इनकम्बेंट लोड. नेक्स्ट हमारा जो है डिक्रीजिंग सुपर इनकम्बेंट लोड. डिक्रीजिंग सुपर इनकम्बेंट लोड. आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस. आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस का मतलब क्या होता है कि ये जो सरफेस है, जो अर्थ है, वो अपने आप जो है अपने एक पोजीशंस पे बैलेंस है. कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे ओशियनिक क्रस्ट है. जहाँ पे प्लेटू है वहाँ पे और जहाँ पे प्लेन है या माउंटेन है, सबका प्रेशर अलग अलग होगा.
ये प्रेशर डिफरेंसेस जो है उसको अपने हिसाब से ये बैलेंस किए हुए हैं। इस बैलेंस में कभी भी कोई डिस्टरबेंस होता है तो जिसके कारण भी वॉल्केनिक एरप्शन हो जाता है। और इसको हम आइसोस्टेसी की थ्योरी जब पढ़ेंगे, प्राट और एक और थ्योरी है, तो उसको कंपैरेटिव स्टडी करके बताएंगे कि कहीं पे माउंटेन है तो वहाँ पे उसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे डेंसिटी कम है, इस तरह से उसको वो सस्पेंड करके मैनेज करता है। ये थ्योरीज में हम पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना ही समझ लेना है कि जो ऊपर का लेयर है नीचे वाली लेयर पे प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर होने के कारण वो एक तरह से बैलेंस रहता है। अगर यही प्रेशर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, उसके कारण जो है वॉल्केनिक eruptions होगा। डिक्रीजिंग सुपर इनकम्बेंट लोड। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे प्लेट मूवमेंट्स, अर्थक्वेक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, वेपर एंड स्टीम फॉर्मेशंस विल इंक्रीज द वॉल्यूम, आइसोस्टैटिक इम्बैलेंसेस, डिक्रीजिंग सुपर इनकम्बेंट लोड। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो है इसको अगर इस तरह से कहा जाए कि वॉल्केनिक eruptions इज एसोसिएटेड विद द वीकर जोन्स ऑफ द क्रस्ट। वॉल्केनिक eruption इज एसोसिएटेड विद द वीकर जोन्स ऑफ द क्रस्ट। यहाँ पे अगर मिटा करके इसको लिखा जाए फिर से इस तरह से कुछ, वॉल्केनिक eruption is associated with volcanic eruption is associated with weaker crustal zone. Volcanic eruption is associated with the weaker zone of the rock crust. These weaker zones may be divergent or convergent or transform plate margin. These weaker zones may be divergence, convergence or transform plate margin. ये जो है वीकर जोन्स या तो डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन होगा, यानी दो प्लेटें ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन होगा, दो प्लेटें आकर के कोलाइड कर जाएं, मिल जाएं टकरा करके, या तो जो है ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन होगा, एक प्लेट इधर से मूव कर रही है, दूसरा इधर से आ रही, दूसरी प्लेट इधर से मूव कर रही है और दोनों एक दूसरे से टकराए ना, अपनी दिशा में अपने स्पेस में मूव करते रहें, इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। या तो ये कंडीशंस होगा और हॉट स्पॉट ऑफ इनर क्रस्टल लेयर, इनर क्रस्टल लेयर। हॉट स्पॉट से यहां संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट ये है हमारा कि अर्थ जो है का इंट्रा प्लेट, यानी प्लेट का मार्जिन नहीं, प्लेट के बीचों बीच में कहीं पे क्रस्टल ब्लॉक थोड़ा थिनर हो, पतली हो। जब क्रस्टल ब्लॉक थोड़ी पतली होगी, कहां पे, बीचों बीच में कहीं पे, मार्जिन पे नहीं, मार्जिन के अलावा कहीं पे भी, अदर देन द मार्जिन, व्हेन क्रस्टल ब्लॉक्स इज थिनर अदर देन द मार्जिन, मार्जिन के अलावा कहीं पे भी क्रस्टल ब्लॉक अगर थिनर है, पतली है, तो वहां पे वीकर जोन्स होगा। जब ये जोन वीकर होगा, अच्छा अगली चीज का क्या बात कही जाती है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ एट 1 सेंटीग्रेड पर 32 किलोमीटर। अगली बात इसमें यह कही गई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरे कलर से कि टेम्परेचर
इंक्रीजेज, ये मैकेनिज्म है, वॉल्केनिक मैकेनिज्म, मतलब कैसे वॉल्केनो होता है, कहीं कहीं पे क्यों होता है, हर जगह वॉल्केनिक एरप्शन नहीं होता, कुछ ही जगहों पे होता है, उसका क्या कारण है, उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ वॉल्केनोज, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज इन डेप्थ at the rate of 1 centigrade per 32 meters, per 32 meters, 32 meters per 32 meters due to the disintegrations of radioactive substances. Disintegration of radioactive substances. Temperature increases in depth at the rate of 1 Celsius per 32 meters in depth due to the disintegrations of radioactive substances. जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज हैं, जो उनका एक तरह से न्यूट्रॉन जो है जब अलग होता है तो उसके कारण एक तरह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है, जिस तरह से हम न्यूक्लियर प्लांट्स में करते हैं। तो वही फार्मूला वहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज जो है अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से बम्बार्ड होकर के अलग होते हैं। जब वो अलग होंगे तो एक तरह से एनर्जी जनरेट करेंगे, हीट क्रिएट करेगा। अगर वहाँ पे हीट क्रिएट हो रहा है और साइमल्टेनियसली एक कंडीशंस ये है यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट है कि डिक्रीजिंग weight of super incumbent overload. डिक्रीजिंग वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट ओवरलोड, ऊपर का जो रॉक है, सुपर इनकम्बेंट का मतलब कि ऊपर वाला रॉक का हिस्सा जो नीचे वाले पे प्रेशर डाल रहा है, वो वाली रॉक जो ऊपर है वो अगर उसका लोड जो है वेट कम हो जाए तो डिक्रीजिंग वेट, रिडक्शन ऑफ द ओवरलाइंग सुपर इनकम्बेंट लोड, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑफ वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट ओवरलोड, ये जो ऊपर वाली रॉक है उसका जो है वेट नीचे वाली रॉक पे कम हो जाए। किन जगहों पे कम हो जाए? इन फॉल्ट जोन और प्लेट मार्जिन और प्लेट मार्जिन्स और हॉट स्पॉट, ऐसी जगह पे जहां पे क्रेक है, फॉल्ट्स है, वहां पे भी ऐसा क्या होगा, ऊपर वाले रॉक का लोड उतना ज्यादा प्रेशर नीचे वाली पे नहीं डाल पाएगा। ऐसी जगह जहां पे प्लेट मार्जिन है, प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, ऐसी जगहों पे भी ऊपर वाली रॉक का लोड नीचे वाली रॉक्स पे कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अगर ऊपर वाली रॉक का लोड नीचे वाली पे कम हो जाए तो उसके कारण जो है, जो प्रेशर है यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। विद डिक्रीजिंग प्रेशर बाई ओवरलाइंग रॉक्स, अगर जो है ऊपर वाली रॉक का प्रेशर जो नीचे वाली रॉक से पड़ रहा था वो प्रेशर कम हो जाए, अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट्स of such underlying rocks
विल डिक्रीज। अगर मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे वाली रॉक का जो है घट जाए, कम हो जाए, क्यों घट जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कुकर ले लेते हैं और एक केटल ले लेते हैं, सिंपल केटल। कुकर में दाल पकाते हैं या केतली में दाल पकाते हैं? हमने क्या देखा कि केतली में दाल पकने में ज़्यादा समय लगा, कुकर में हमारा दाल जल्दी पक गया। उसका कारण क्या है कि कुकर को हमने फुल्ली एक कैप से ढक करके उसके प्रेशर को बढ़ा दिया। जब प्रेशर किसी भी चीज़ का बढ़ा दिया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। जब किसी भी चीज़ का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यहाँ वाली कंडीशंस में हम देखते हैं कि हमने क्या किया कि प्रेशर जो है हमने क्या किया, घटा दिया। अगर प्रेशर हमने किसी भी चीज़ का घटा दिया तो उसका मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया। जब मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? अर्थ के अंदर टेम्परेचर हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहीं पे 400 सेंटीग्रेड होता है। अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर डेप्थ पे हमारा 100 किलोमीटर डेप्थ अगर अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है 200 सेंटीग्रेड है। लेकिन कोई भी चीज़ 100 किलोमीटर डेप्थ पे मेल्ट नहीं होती। उसका कारण क्या है कि इतना ज़्यादा सुपर इनकम्बेंट लोड है, ऊपर वाली रॉक का जो लोड है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दे रहा है, इसीलिए कोई चीज़ मेल्ट नहीं हो रही। जब कोई चीज़ अंदर मेल्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब कि अगर कहीं से थोड़ा सा गैप कर दिया जाए, यानी कि जो सुपर इनकम्बेंट लोड को डिस्प्लेस कर दिया जाए, या वो प्रेशर जो ओवरलाइंग रॉक है, ऊपर वाली रॉक का जो प्रेशर या वेट है उसको हमने थोड़ा सा घटा दिया, तो 200 डिग्री टेम्परेचर तो किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से बर्न कर देगा। इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा तो बहुत आसानी से कोई भी चीज़ बर्न हो जाए। इस तरह से वहाँ पे हमने क्या लिखा ये बात कि विद डिक्रीज, यहाँ पे देखिए, ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी वहाँ पे अर्थ के अंदर हमेशा जो है ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पहले से मौजूद रहते हैं जो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर हमारा इस दर पे बढ़ता रहता है, 32 मीटर अंदर जाने पे 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। आखिरकार होता है क्या? डिक्रीजिंग वेट ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लोड। इसी कारण जो है जो ऊपर वाली रॉक है उसका लोड कम हो जाए, ओवरलाइंग रॉक, ऊपर पड़ी हुई जो रॉक है उसका लोड कम हो गया, उसका प्रेशर या उसका वेट कम हो गया, जिसके कारण नीचे वाली रॉक का मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा तो उसका मतलब ये कि बहुत आसानी से वो बर्न हो जाएगी, वो जलने लगेगी। और जब वो जलने लगेगी तो उसमें वॉल्यूम का इंक्रीज होगा, जो भी वाटर वाली है वो सारे के सारे फ्लूइड लिक्विड आसानी से ज़्यादा वॉल्यूम कवर करने लगेंगे, फिर एक प्रेशर और क्रिएट होगा नीचे से, और फिर वो वॉल्केनिक एरप्शन होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? ये तो मतलब कि हमने लिखा ऑन सच अंडरलाइंग रॉक्स विल डिक्रीज, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सच अंडरलाइन रॉक विल डिक्रीज, जो नीचे की रॉक है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वहां पे डिक्रीज हो गया। ये तो मतलब एक फीचर्स है ही है। उसके अलावा एक फीचर्स और है कि व्हेन एवर मेल्टेड वाटर या रेन वाटर पेनिट्रेट इनसाइड द अर्थ, व्हेन एवर मेल्टेड वाटर या रेन वाटर पेनिट्रेट या सिंक inside the earth, when it reaches in the interior parts of the earth, it's evaporated, it vaporized, it become steam। और अगर ये स्टीम या वेपर बनेगा तो इट विल इनहेंस द वॉल्यूम ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। ये जो है सराउंडिंग एरियाज का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देगा। जब ये सराउंडिंग एरियाज का वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे और ज़्यादा नीचे से भी प्रेशर आने लगेगा और रॉक और फट जाएगी, वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगेगा। तो एक कंडीशंस यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट भी डाल देते हैं।
व्हेन, यहाँ पे लिख दें चाहे, मैं थोड़ा कलर बदल दें समझने के लिए, व्हेन रेन वाटर और मेल्टेड वाटर पेनिट्रेट inside earth, they vaporized or become steams. Volume will enhance after vaporizations. Volume will increase after vaporizations. जब ये उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका मतलब कि वहां से भी एक कारण ये भी बनेगा अर्थक्वेक का। तो हमने जो है, तो राइजिंग मैग्मा फोर्स्ड बाय द इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड वेपर्स। तो इसमें अगली बात क्या है कि ड्यू टू दैट फैक्टर मैग्मा एंड लावा विल स्टार्ट राइजिंग या अपराइजिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड मूव टुवर्ड द सरफेस, या वॉल्केनिक इरप्शन विल टेकन प्लेस, या वॉल्केनिक इरप्शन विल टेक प्लेस। तो हमने क्या कहा कि वॉल्केनिक इरप्शंस इज एसोसिएटेड विद द वीकर जोन्स ऑफ द क्रस्ट। वॉल्केनिक इरप्शन जो है, इसका संबंध वो जो है कमज़ोर जो है क्रस्टल ब्लॉक है उससे संबंधित है। वो क्रस्टल ब्लॉक जहाँ पे कमज़ोर है उससे वॉल्केनिक इरप्शन संबंधित है। क्रस्टल ब्लॉक वहीं पे कमज़ोर होता है, इधर दे विल बी द डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन और कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन और ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। या तो वो जो है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन होंगे, या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन होंगे, या ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन होंगे, या वो हॉट स्पॉट जोन होंगे जिन पे क्रस्टल लेयर बहुत थिक होगी, बहुत थिन होगी, बहुत पतली होगी, या हॉट स्पॉट ऑफ द थिनर क्रस्टल लेयर, या हॉट स्पॉट वाला एरियाज होगा जहाँ पे क्रस्टल लेयर बहुत ही पतली होगी। अगर ये ऐसी वाली कंडीशंस है किसी भी जगह पे, प्लस वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज इन डेप्थ एट द रेट ऑफ 1 सेंटीग्रेड पर 32 मीटर ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। हम जमीन के भीतर जैसे जैसे जाते हैं 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है हर 32 मीटर अंदर डेप्थ में जाने पे। हर 32 मीटर अंदर डेप्थ में जाने पे 1 सेल्सियस या 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं वो आपस में उसके जो न्यूट्रॉन्स वगैरह आपस में टकरा करके अलग होते रहते हैं और उसके कारण ये वहाँ पे हीट जनरेट होती रहती है। ये तो मतलब कंडीशन दूसरी हो गई। नेक्स्ट कंडीशन है डिक्रीजिंग वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट ओवरलोड इन फॉल्ट जोन और प्लेट मार्जिन्स और हॉट स्पॉट। अगर ऐसी कंडीशंस हो और वहाँ पे किसी ऐसी जगह पे ओवरलाइंग रॉक, ऊपर वाली जो रॉक का लेयर है उसका वेट कम हो जाए, ऊपर वाली रॉक का वेट अगर किसी भी जगह पे कम हो जाएगा तो उसके नीचे की जो रॉक हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी घट जाएगा। उनका मेल्टिंग पॉइंट्स विद डिक्रीजिंग प्रेशर बाय ओवरलाइंग रॉक, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सच अंडरलाइंग रॉक विल डिक्रीज। ऊपर वाली रॉक का प्रेशर अगर किसी जगह पे घट गया तो नीचे वाली जो उसकी रॉक है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सेम ऐसे ही प्रेशर घटाने से, या प्रेशर हमने नहीं घटाया, ये तो इस कंडीशंस में घट गई कहीं पे रॉक प्लेट मूवमेंट के कारण या फॉल्ट होने के कारण। अगर कहीं पे प्रेशर घट गया तो उसका मतलब कि उसके नीचे वाली जो रॉक है उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा उसका मतलब कि वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकता है। एक तो फैक्टर ये है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है when rain water or melted water penetrate inside the earth and they vaporized or become steams. When they vaporized or become steams, the volume of these areas inside the earth will increase. When the volume will increase, they exert the pressure and
वीकेन द रॉक्स एंड स्टार्ट द वॉल्केनिक इरप्शंस। कभी कभार ऐसा होता है कि यही सरफेस वाटर जमीन के भीतर पेनिट्रेट कर करके अंदर बहुत ही डेप्थ में चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो अंदर की जो हीट है उसके कारण वेपर में या जो है जलवाष्प वगैरह बन जाता है, या स्टीम या भाप बन जाता है। जब वो भाप बन जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नीचे से प्रेशर डाल करके उस रॉक को कमज़ोर कर देगी और वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होने लगेगा। ये हमने पढ़ा, ये टॉपिक जो है वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड, जो कि उसका मेकानिज़म था। अब हम अगला पढ़ते हैं। इसमें हमको एक चीज़ ये जान लेना चाहिए कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस है, हमने यहाँ पे प्लेट्स की बात की, यानी कि हमने यहाँ पे प्लेट्स की भी बात की, जैसे कि डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, समटाइम्स द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज की द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द मोस्ट रिलेवेंट थ्योरी फॉर द वॉल्केनिक इरप्शंस। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स we can critically analyze of the what are the major factors of the earthquake, what are the major factors of the volcanic eruptions in the associations of the plate tectonic theory। प्लेट टेक्टोनिक थियरी के कॉन्टेक्स्ट में वॉल्केनिक इरप्शंस या अर्थक्वेक होने के क्या क्या कारण हैं, क्रिटिकली एनालिसिस करिए। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। अगर हमारा क्वेश्चन ये आ गया कि प्लेट टेक्टोनिक के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में वॉल्केनिक इरप्शन से को एनालिसिस करिए, तो हमको सिर्फ इतना ही लिखना है, जो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसमें यही बताना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का डिफिनेशन, यानी कि देयर इज द प्लेट दैट मूव्स इन इट्स डायरेक्शंस, दीज प्लेट्स मूव ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट, दीज प्लेट्स हैविंग margins, sometimes the plates collided with each other, sometimes plates move in the opposite directions, sometimes plates move parallel to each other but there is no collision। मतलब कि प्लेट्स ऐसी हैं कुछ मार्जिन्स कि कभी कभी वो एक दूसरे से टकराती हैं, कभी कभी प्लेटें ऐसी हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशनल फोर्सेस के कारण अलग हो जाती हैं। कभी कभी प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव करती रहती हैं लेकिन कोई कोलिजन नहीं होता। मतलब कि कहीं पे डाइवर्जेंट प्लेट है, कहीं पे कन्वर्जेंट प्लेट है, कहीं पे ट्रांसफॉर्म प्लेट है। ये जो डाइवर्जेंट प्लेट है उसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे प्लेट कमज़ोर हो जाए तो उसका मतलब कि वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिक हमारा जो है कम हो जाएगा, और वहाँ पे लेयर अगर कमज़ोर हो जाए तो बाकी यही कॉन्टेक्स्ट जो लिखा गया इसमें यही वहाँ पे भी डिस्क्राइब करना है। वन लिए प्लेट का थोड़ा सा कि अगर प्लेट के कारण वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है तो उसका मतलब प्लेट अगर मूव होगी तो उसका मतलब कि वहाँ पे फ्रैक्चर, क्रैक या रप्चर या फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। जब फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा उसका मतलब कि उस एरियाज में जो है ओवरलाइंग रॉक है उसका लोड घट जाएगा। जब उसका लोड घट जाएगा इसका मतलब कि नीचे वाली जो अंडरलाइंग रॉक है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा ऑटोमेटिक उसका मतलब कि वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगेगा। तो प्लेट कॉन्टेक्स्ट की थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उसको हम यहाँ ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स ऑफ द वॉल्केनोस, अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द वॉल्केनोस। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस, वॉल्केनोस के क्या क्या टाइप्स हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस जो है इसको वॉल्केनोस को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशंस, मोड ऑफ फॉर्मेशंस या मोड ऑफ इरप्शंस, मोड ऑफ इरप्शंस, मोड ऑफ इरप्शंस,
या हम कह सकते हैं मोड ऑफ पीरियोडिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पीरियोडिसिटी। मोड ऑफ इरप्शन के आधार पे हम प्लेट टेक्टोन ये सॉरी वॉल्केनोस को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मोड ऑफ इरप्शंस के आधार पे इसमें दो तरह से हो सकता है, एक तो हमारा जो है सेंट्रल इरप्शन टाइप, एक फिशर इरप्शन टाइप। इसमें एक जो है हमारा सेंट्रल इरप्शन टाइप, एक हमारा जो है फिशर इरप्शन टाइप। फिशर इरप्शन टाइप जो सेंट्रल इरप्शन टाइप है ये जो है वायलेंट, इसमें जो है एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप भी कह सकते हैं इसको हम, या इसको हम कह सकते हैं और एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप। एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप इसमें हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वाइट इरप्शन। क्वाइट इरप्शन, एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप या क्वाइट इरप्शन टाइप इसको हम कह सकते हैं। फिशर टाइप्स को क्वाइट इरप्शन कहते हैं। यहाँ पे इरप्शंस जो है इस वाली कंडीशंस में हमारा इरप्शन जो है ये सेंट्रल टाइप है, इसमें इरप्शन जो हमारा इरप्शन थ्रो स्मॉल वेंट, स्मॉल माउथ या स्मॉल ओपनिंग। यहाँ पे इरप्शन हमारा जो है बहुत ही स्मॉल, मतलब कि एक तरह से पाइप से या वेंट से या एक माउथ से होता है। इस वाली कंडीशन में हमारा जो है लॉन्ग फ्रैक्चर फॉल्ट स्लो अपीलिंग लावा। इरप्शन जो है यहाँ पे लॉन्ग मतलब कि फ्रैक्चर्स, इस वाली कंडीशंस में हमारा इरप्शन थ्रो लॉन्ग फ्रैक्चर या रिफ्ट या फॉल्ट। यहाँ पे इरप्शंस हमारा जो है बहुत ही लंबाई में ऐसे कोई भी क्रेक या फॉल्ट या जो है रिफ्ट होगी, वैली होगी, उसके द्वारा इरप्शंस होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है ये वाला जो है यानी लावा स्प्रेड ओवर लॉन्ग एक्सटेंसिव डिस्टेंस, इसमें हम कह सकते हैं कि लावा स्प्रेड ओवर लार्ज एक्सटेंसिव एरियाज। यहाँ पे लावा जो है लावा goes into sky up to thousands of the meters. Lava erupted into the sky up to thousands of the meter and deposited around the conduit, around the vent. Lava deposited around the vent. बहुत ऊंचाई तक लावा ऊपर जाता है और वो जब गिरता है तो जिस पाइप से निकलता है, मान लीजिए ये पाइप है, इधर से लावा निकला तो इसी पाइप के चारों तरफ ऐसे सर्कल में जमा होता रहता है जो कि कोन बनाता है। ठीक, इस वाली कंडीशंस में लावा एरप्शंस अगर जो है किसी ऐसे बड़े से फॉल्ट्स वाले एरियाज में हो तो यहाँ पे क्या है डाइवर्जेंट प्लेट वाली मार्जिन होती है ज़्यादातर। यहाँ पे कंडीशन जो है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, रिफ्ट वैली है। इसमें फीचर्स बनते हैं जैसे मान के चलिए कि डेक्कन प्लेटू बना इसी के द्वारा, डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, उसके अलावा कोलंबिया प्लेटू
कोलंबिया प्लेटू इन यूएसए। उसके अलावा जो है ये फिशर वाले टाइप में पराना प्लेटू, पराना प्लेटू इन ब्राज़ील, इन ब्राज़ील। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन अफ्रीका। उसके अलावा कुनगावा पेनिनसुला एंड जो है लॉरेंशियन प्लेटू, लॉरेंशियन शील्ड इन कनाडा, लॉरेंशियन शील्ड इन कनाडा, इसमें हम लिख सकते हैं। इस वाले कंडीशंस में हमारा हवाईयन आइलैंड जो हैं, हवाईयन आइलैंड जो हैं मौना कोआ, मौना लोआ वगैरह, वो जो है इसी के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा जो है हवाईयन आइलैंड्स हैं स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली आइलैंड्स इन मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है। लिपारी आइलैंड्स है मेडिटेरेनियन में, तो स्ट्रोम्बोली इन लिपारी आइलैंड, इन लिपारी इन मेडिटेरेनियन। जो सिसिली है, सिसिली पे माउंट इटना है, वो भी वॉल्केनिक इरप्शंस वाला है, तो उसी के ऊपर लिपारी आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में, वहाँ पे स्ट्रोम्बोली है। ये भी जो है आपका सेंट्रल टाइप है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे हैं। कराकटाओ आइलैंड इन जो है जावा सुमात्रा वाला विसूसियस, पेली आइलैंड जो है आपका पेली वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ, ये मार्टिनिक आइलैंड्स है लेसर एंटाइल्स में कैरिबियन बोर्ड पे, वो भी इसी का सेंट्रल वाले का टाइप का एक एग्जाम्पल है। अगला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द इरप्शंस। अब पीरियोडिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 पे एक्टिव वोल्केनो, नंबर 2 पे हमारा जो है डोरमेंट, नंबर 3 पे हमारा जो है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनो मीन्स the volcanic eruptions is continued, there is the chances of the eruptions in the future also. While dormant volcano, there was the earlier eruptions, but since last 100 and 200 years there has the no eruptions, but there in future there might be eruptions occurred, that is the dormant. extinct eruptions बहुत ज़्यादा दिन हो गया उससे नहीं हुआ और फ्यूचर में भी कोई चांसेस नहीं है वॉल्केनिक eruptions के, तो इसको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं एक्टिव वॉल्केनो। तो कॉन्स्टेंटली इजेक्शंस ऑफ द लावा, constantly ejections of the lava eruptions in present and as well as in the future will remain continue. नेक्स्ट हमारा जो है डोरमेंट है, quite for sometimes, quite for sometimes, for sometimes, but may erupt in future, but may erupt in future. कुछ सालों से इसमें वॉल्केनिक इरप्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में इरप्शन हो सकता है। एक्सटिंक्ट का मतलब देयर आर नो इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर इरप्शंस। एक्सटिंक्ट का मतलब कि देयर इज द नो इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर इरप्शंस। तो एक्सटिंक्ट का मतलब कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए ख़त्म हो गया, वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शंस भविष्य में भी नहीं होगा, उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट। डोरमेंट का मतलब कि जो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए वॉल्केनिक इरप्शन तो ना हुआ हो, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में उससे इरप्शन हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं डोरमेंट कंडीशन। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब होता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस अभी हो भी रहा है या पिछले कुछ साल पहले हुआ था
और फ्यूचर में भी होने के चांसेस हैं, तो उसको कहा जाएगा एक्टिव वॉल्केनो। अब हम बातें करते हैं जो एक्टिव वॉल्केनो हैं उसके बारे में नंबर 1 पे। तो सिस्टमेटिक अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले नंबर पे कुछ फेमस एक्टिव वॉल्केनोज हैं उसके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद जो रिसेंट सालों के कुछ एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जैसे जो 2018, 19 या 20 में कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, उसके बारे में फिर बातें करेंगे और उनका लोकेशंस। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनोज की अगर बात करें तो कुछ वर्ड फेमस हैं, जैसे कि इटना इन सिसिली। तो इसको हम लिखते चलें, अगर यहाँ पे माउंट इटना है, ये जो है सिसिली है। सिसिली ये एक तरह से कह सकते हैं माउंट इटना इन मेडिटेरेनियन सी। माउंट इटना जो है एक तरह से सिसिली में पड़ता है। सिसिली एक आइलैंड है, ये इटली का हिस्सा है मेडिटेरेनियन ओशंस में, वो है एक। तो उसके अलावा स्ट्रोम्बोली है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। स्ट्रोम्बोली इन लिपारी आइलैंड्स इन मेडिटेरेनियन। ये जो स्ट्रोम्बोली है लिपारी आइलैंड मेडिटेरेनियन में है, ये सिसिली के ऊपर मैप में देखेंगे तो छोटा सा ऐसे हल्का सा है। स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। इसका कारण क्या है कि ये 63 या ऐसे ऑलमोस्ट मिनट्स के बाद इसमें इरप्शंस होता ही होता है। तो ये और इरप्शंस कैसे होता है, इसमें ऐसा होता है कि गैस निकल करके इससे बर्न होता रहता है। तो जिस तरह से कोई चीज़ जला दिया जाए तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन इसीलिए कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस इरप्शंस ऑफ बर्निंग एंड लुमिनस इनकैंडेसेंट गैसेस फ्रॉम द स्ट्रोम्बोली। तो कंटिन्यूअस इरप्शंस आफ्टर एवरी 63 मिनट्स आई थिंक, एंड luminous incandescent गैसेस। नेक्स्ट जो है पिनाटुबो वॉल्केनो है। पिनाटुबो वॉल्केनो है, ये जो है पेस्को वगैरह में है शायद। पिनाटुबो वॉल्केनो है। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में बात करते हैं जो 2020 या 19 में अभी इरप्शंस हाल में हुए थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नंबर 1 पे हमारा जो है रिसेंट जो है इरप्शंस हम कह सकते हैं इसको। तो दीज आर दी रिसेंट इरप्शंस। रिसेंट इरप्शंस का मतलब कि जो अभी पिछले सालों में जो हुआ था उसके बारे में। तो रिसेंट इरप्शंस के अंतर्गत हमारा आएगा, तो नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। किलिमंजारो नेशनल पार्क भी है इसी के आसपास, जो है इसका जो कोन है उस वाले हिस्से पे किलिमंजारो नेशनल पार्क है। ये कंपोजिट कोन बनाता है, ये कंपोजिट कोन बनाता है जो किलिमंजारो है। कंपोजिट एंड पैरासाइटिक कोन, इसमें 3 कोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, मतलब कि 3 वेंट्स है। पैरासाइटिक कोन का मतलब कि एक मेन हो पाइप और बाकी साइड से उससे कुछ आकर के पाइप्स निकल करके उसके जो लेयर है जो साइड वाला उससे इरप्शंस होने लगे। तो इसके मेन जो है 3 एक तरह से इसमें से पाइप का इरप्शंस होता है। अभी कुछ दिनों पे जो टॉप वाला हिस्सा है उससे इरप्शंस या धुआं वुआं देखा गया था इसमें। ये एक तरह से नेशनल पार्क भी है, ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, यूनेस्को का जो एक तरह से हेरिटेज साइट भी है ये। नेक्स्ट हमारा जो है माउंट सिनाबंग
इन सुमात्रा, माउंट सिनाबंग इन सुमात्रा। अगला हमारा जो है माउंट सिनाबंग इन सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है, उसमें जो है सिनाबंग है, उससे भी अभी इरप्शंस हुआ था पिछले, जो है शायद कि इसी साल की बात है, सिनाबंग से भी सुमात्रा में इरप्शंस हुआ है। माउंट मेरापी इन जावा आइलैंड इन इंडोनेशिया। माउंट मेरापी इन जावा, जावा आइलैंड्स है, उसमें भी अभी माउंट मेरापी एक जगह है, वहां से भी इरप्शंस हुआ था पिछले 5-7 महीनों के अंदर ही की बात है ये शायद। नेक्स्ट जो है ताल लुजान आइलैंड इन फिलीपाइंस। ताल आइलैंड आई थिंक ये सितंबर या अक्टूबर की बात है अभी, या अगस्त की बात है। ताल इन लुजान आइलैंड इन फिलीपाइंस। ताल आइलैंड से, ताल जो है एक तरह से एक मतलब कि पीक टाइप है, एक वाल्केनिक इरप्शन साइट है, जहाँ की जो कि लुजान आइलैंड में फिलीपाइन में पड़ता है, वहाँ से भी वाल्केनिक इरप्शन हुआ था। नेक्स्ट जो है वाइट आइलैंड्स इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट जो है हमारा वाइट आइलैंड्स इन न्यूजीलैंड। वाइट आइलैंड जो है न्यूजीलैंड का है, उसमें भी वाल्केनिक इरप्शन हुआ है। माउंट इटना इन सिसिली। माउंट इटना सिसिली, इससे भी अभी हाल के दिनों में इरप्शन हुआ था। माउंट इटना से, स्ट्रोम्बोली से तो डेली होता है ऑलमोस्ट, माउंट इटना से भी अभी कुछ दिनों पहले इरप्शन हुआ था। डोरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो विसूवियस आइलैंड्स है, ये जो है रोम के नीचे वहाँ पे पोम्पियाई शहर है, जहाँ पे लास्ट इरप्शन जो है 1929 में हुआ था। विसूवियस जो है एक तरह से डोरमेंट कंडीशंस में है। विसूवियस जो है ये आपका पोम्पियाई सिटी जो है विसूवियस है, ये रोम के नीचे इटली में जो है, वहाँ पे भी इरप्शन हुआ, जो कि डोरमेंट में आएगा। अब अगला हमारा जो टॉपिक है ये मतलब कि 7 आवर्स 7 हो गए। अगला हमारा जो है टोपोग्राफी जो है फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनोज, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। तो टोपोग्राफी जो है, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वॉल्केनोज हैं, उसके बाद जो है इम्पैक्ट है, और कुछ जो है गीजर्स और वगैरह के बारे में बातें करेंगे। तो नंबर 1 पे हमारा जो है टोपोग्राफी फाउंड बाय द वॉल्केनोज। तो हमने ये बातें की जो है एक्टिव वॉल्केनोज में, जिसमें कि किलिमंजारो से अभी 2 या 3 महीने पहले ये तंजानिया में पड़ता है, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। एक जो है सिनाबंग करके सुमात्रा में आइलैंड्स में एक जगह है, वहाँ से भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। जो मेरापी है, मेरापी से भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। मेरापी ये जावा के अंदर पड़ता है। ताल जो है एक तरह से लुजान आइलैंड फिलीपाइन का, वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। वाइट आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है, न्यूजीलैंड का हिस्सा है, पैसिफिक वगैरह में कहीं पे, उससे भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। ये पिछले कुछ दिनों पहले की न्यूज़ में जो रही हैं चीज़ें, उसके बारे में हमने बातें की। अब हम बातें करते हैं जो है टोपोग्राफी फाउंड बाय द वॉल्केनोज। अगला टॉपिक हमारा जो है टोपोग्राफी फाउंड बाय द वॉल्केनोज। वॉल्केनिक इरप्शंस के द्वारा जो टोपोग्राफिक फीचर्स बनता है, जो स्थल रूपियाँ बनती हैं, उसके बारे में बातें करें। उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो नंबर 1 पे हमारा जो है लावा जब नीचे से इरप्शंस होता है तो वो आ करके कुछ नीचे जो है कुछ एक अलग किस्म की फीचर्स को बनाता है, कभी कभी वो ऊपर आ करके फीचर्स बनाता है। इसके बारे में हम अगले टॉपिक्स में बातें करेंगे। अब यहीं पे हम पूर्ण देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टोपोग्राफिक फीचर्स, टोपोग्राफी फाउंड बाय द वॉल्केनोज। ओके बाय, ऑल दी बेस्ट। तब के लिए हम विदा लेते हैं।